lady of many talents, producer and director of several feature film programs on All India Radio, Doordarshan and other television channels. Some of her documentary films have been screened at the prestigious Cannes and international film festivals. The documentary we are going to see, You Be the Sky. It's an inspirational film conceived, scripted and directed by Dr. Loveleen Thadani. I commend all aspects of the film, including the script, photography, editing, and the direction. In the ancient land of India, 2,500 years ago, Prince Siddhartha, who later came to be known as the Buddha, seeing people in pain and distress, decided to find a permanent solution to human suffering. I told Loveleen a minute back, I feel proud of her. I think this film is an education. It tells us the best in us is buried in us. We have to bring it out. May I compliment you, Loveleen, once again? मेरे पास इसकी तारीफ़ करने के लिए कोई शब्द नहीं है। जिस तरह से एक एक डायलॉग, जिस तरह से वो पूरी पटकथा बुनी गई, जिस तरह से उसका एक एक एक्सप्रेशन, जिस तरह से उसका डायरेक्शन, जो बैकग्राउंड, एक एक चीज़ का की अगर समीक्षा करें तो ये फिल्म लाजवाब है और ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। As Ghalib said, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना. She could have jolly well be sitting comfortably. But this sensitive soul is working with the oppressed classes. This film takes its origin in rural India. In almost 10 states of modern rural India, you find innocent women being victimized as witches and killed. ओझा, बता बुधराम दादा को किसने मारा? उस डायन का पता बता। बता, जल्दी पता बता। Really sad that in this century these kind of things are still happening in our villages. It is something that we should all be ashamed of. So I congratulate Loveleen on this marvelous effort. I think every penny that she got from the government has been well spent, and she's done a great job. And most of all that I liked in the film, of course, besides the lovely actors that she managed to, assemble, was that she kept the sensibility at the rural level. So well done, Loveleen, and I wish you all the best. Thank you, Loveleen, for having invited us here today and showing us such a wonderful film, having opened our eyes, having really making me feel ashamed that why haven't I attempted something like this. I really congratulate you. Great work. बहुत कठिन है इस फिल्म को देखने के तुरंत बाद कुछ बोलना, बहुत कठिन है। एक भावना तो आ रही थी कि न्यूयॉर्क करने में क्या जा रही हूँ, सब काम तो यहाँ है, सेवा तो यहाँ है। तो जिस तरीके से ये फिल्म को बनाया गया है,
और विषय को खींचा गया है और प्रदर्शित किया गया है, मुझे तो पिघला दिया है। इस फिल्म ने मुझे अंतर्मुख होने को मजबूर कर दिया। तुमने झकझोर कर दिया इस फिल्म से। ऐसी अच्छी फिल्म मैंने आज तक कभी नहीं देखी। सल्यूटिंग विमेन, ये ग्रैंड फिल्म फेस्टिवल जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, 4 दिन तक चलेगा, बस अभी थोड़ी ही देर से। तो हम जानना चाहेंगे, आपकी इतनी सारी फिल्में इसमें शोकेस हो रही हैं, तो आज जो फिल्म्स दिखाई जा रही हैं उनका फोकस क्या है? ऑफ कोर्स वुमेन तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम फोकस क्या है? प्रॉब्लम एक तो हम सती पे दिखा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि आज भी सती प्रथा जिंदा है और जिंदा औरतों को जला दिया जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी फिल्म के थ्रू उसको ख़त्म करने की। और दूसरी फिल्म है एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची की जो चाहती है आगे पढ़ना, पर उसके माँ बाप उसको अलाउ नहीं करते हैं, ख़ास करके बाप। पर दादी जो हैं पुराने ज़माने की, वो उठ खड़ी होती हैं और कहती नहीं, आपको शिक्षित करना पड़ेगा इसको। बापू तो जल्द से जल्द तेरे हाथ पीले कर देना चाहते हैं। अरे पहले स्याही से हाथ नीले तो कर लेने दे। बिल्कुल ठीक, फिर पीले भी कर लेना। हम आज इस मकाम पे पहुंचे हैं कि जहां डॉक्टर लवलीन थडानी ने अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। कम से कम राष्ट्रीय रिकॉर्ड तो आज टूटता है, क्योंकि अब तक 60 सालों के अंदर किसी भी एक महिला की 16 फिल्मों का 4 दिन का फिल्म फेस्टिवल भारत में नहीं हुआ है। I'm very happy to declare festival open. इंडिया हैबिटेट सेंटर में 5 से 8 मार्च तक महिला फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। यहाँ लवलीन थडानी की सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। All these films have been made for the Ministry of HRD. We are correlating education with the evils in our society, because unless our girls and women come forward and get educated, very little is going to change, especially in rural India. So I dedicate this festival to women of India, gutsy, courageous, brave women of India who go through so much and yet they are winners. Why? Because a woman carries life in her womb, so she can never lose. She has to win. बाल विवाह, सती प्रथा, लड़कियों का व्यापार और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर बनी ये फिल्में ग्रामीण महिलाओं के दर्द को दिखाती हैं। अगर बेटियों को माँ बाप अपना सहारा समझने लगे, अपने तो हाथ समझने लगे और दहेज के लोभियों को दरवाजे से धुतकार, लेकिन साथ ही हर समस्या का समाधान भी बताती है। दहेज जैसी गंदी प्रथा अपने आप समाज से खत्म हो जाएगी। गांव की औरतें, उनको तो अवेयरनेस ही नहीं है, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। तो मेरा मकसद ये था कि पहले मैं उनको तो जाके जरा झकझोरूं। हमें कुछ नहीं सुनना, इस शादी को हम नहीं मानते। ये क्या कह रहे हैं सरपंच जी? सोनिया बेटी, तू रामपाल से शादी तोड़ दे और इसे अपना भाई मान ले। क्या? ये कैसे हो सकता है? पति भाई कैसे बन सकते हैं? यही पंचायत का फैसला है। सरपंच जी, मैं नहीं मानती। हमारी शादी को 18 महीने हो गए हैं। पंचायत ने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। रामपाल, सोनिया, एक गांठ बांध लो। आज से तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता हुआ और इस मर्यादा का पालन करने के लिए तुम दोनों को अलग अलग रहना होगा। कभी नहीं। रामपाल मेरे पति हैं और पति ही रहेंगे। बदतमीज लड़की, पंचायत के सामने जबान लड़ाती है। अब इस पंचायत का एक फैसला और सुन। आज से इसी वक्त से तेरा इस गांव से निकाला हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे? माँ, माँ, आजा। चुप गई थी। इतनी खूबसूरत फिल्में उन्होंने दिखाई कि हम लोगों को देखने के बाद लग रहा था ये बंद क्यों हो गई, ये चलती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच।
डॉक्टर लवलीन थडानी ने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपने पैशन को, मैं तो कहता हूँ फिल्म मेकिंग इज अ पैशन फर्स्ट, अपने पैशन को इस खूबसूरती से निभाया है। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है, बहुत बढ़िया रहे। और रिसर्च वर्क जिसे मैं कहूँगा, जो एक फिल्म के लिए अत्यंत आवश्यक है, रिसर्च अप टू द मार्क, के अखबार से कटिंग से एक कतरन को काट कर और उसमें से एक स्टोरी डेवलप कर हकीकत को जानकर उसके पीछे उन सारे राज और कारणों को पहचान कर उसकी स्क्रिप्ट तैयार करना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। Lavleen's role, Lavleen's contribution in these films is remarkable. She is a true filmmaker and a social worker. These two combined together, Lavleen, you have really done marvelous work. What the marvelous work they have done. I simply don't have words to express my appreciation and my gratitude, which has enabled me to be here today. I was running very high fever. Even half an hour earlier, I was not sure of coming. Maybe it's the divine will. And Lavleen's movie will have an impact not only today, for so many years to come. I just don't have words. Thank you so much for giving me हम ये गांव छोड़कर नहीं जाते। तुम्हारा तो खराब नहीं हो गया? पागल हो गए हो क्या? इतना कुछ होने के बाद भी? जिसकी इज्जत लुट गई उसके पास हिम्मत के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। भिखारी किसको बोलता है तू? भिखारी होंगे तुम और तुम्हारा खानदान। तुम ही लोग आए थे ना रिश्ते की भीख मांगने, फिर मांगा दहेज में टीवी, कार, वीसीआर। अब दहेज की लालच इतनी बढ़ गई है कि मुहूर्त से पहले पापा से दहेज में 35 लाख रुपए मांगते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? फिल्म को देख के बहुत अच्छा लगा और मुझे पता लगा कि हमें सब औरतों को हिम्मत आई और वगैरह बुराइयों से बचें। I think when you see films like this, you really want to get involved and be out there and feel that yes, you've made a difference in somebody's life, maybe 1, 2 or more people. And I think that's the kind of difference you're bringing about with your films, Lavleen. इतनी रुचिकर फिल्में और इतना व्यक्ति को बांध देने वाली फिल्में तुमने बनाई है लवलीन। मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। लवलीन के साथ बहुत पुराना संबंध है मेरा और मैं बहुत सालों से उसे देख रही हूँ। एक छोटे से दिए को लेके वो मशाल की तरह जल उठी है और इतने सारे लोगों को उसने इन्वॉल्व किया है। खाली अवेयरनेस की बात दिल और दिमाग तक नहीं, आत्मा तक उतरती है। मैं फिर बार बार उसे बधाई देती हूँ। I know that she's such a wonderful artist, such a wonderful director, such a wonderful mother, such a wonderful wife, such a wonderful friend and such a wonderful person to work with when it comes to the development sector. She's fantastic. On this very, very auspicious and a very important day, International Women's Day, salute the strong woman who looks very frail actually, Lavleen Thadani, and I want to actually hug you even if you're standing just sitting there. Always welcome. लवलीन को मैं बहुत वर्षों से जानती हूँ। इन फिल्मों की कैसेट लेकर मेरे घर आई थी तो कहने लगी कि मैंने इस तरह से फिल्में बनाई हैं। तो मैंने पूछा आप कैसे गांव में रही, आप तो शहर में रहने वाली हैं। कहने लगी मैं उन्हीं की तरह रहती थी, उन्हीं की तरह खाती थी, उन्हीं की तरह कपड़े पहनती थी, उन्हीं की तरह घूंघट काटती थी, उन्हीं की तरह नंगे पांव चलती थी, उन्हीं के जैसे रही। तो उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं ये कार्य कर पाई। बलात्कार
फिल्में समाज का आईना होती हैं, वो देश जहां हर घंटे 2 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं। वहां एक महिला ने इस गंभीर मुद्दे को डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों के सामने पेश किया है। लवलीन थडानी ने अपनी फिल्म रेप कंपाउंडेंट के जरिए पीड़ित महिला की मानसिक स्थिति के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश की है कि आखिर कोई बलात्कार क्यों करता है। फिल्म सारी पूरी सोसाइटी के लिए बनाई गई है, ये खाली औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशनिस्ट, लॉ मेकर्स, लॉ कीपर्स, सबके लिए बनाई गई है। तो क्योंकि फिल्म अहम थी तो मैं उस दर्द को और उस मुसीबत को, एक रेप कॉन्विक्ट से बात करना जो कि शर्मिंदा ही नहीं है अपने एक्ट पे, एक बहुत मुश्किल काम था। बलात्कार वो मानो जो 6-7 जने एक लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, बलात्कार वो मानो, उसमें तो तुम फांसी की सजा देना चाहो, उसमें फांसी या लिंक कटवा दो क्षेत्र वालों को, तो इससे ज्यादा और क्या होगा। लवलीन थडानी ने इस शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए बाकायदा रिसर्च की है। वो तिहाड़ जेल में न केवल बलात्कारी से मिली, बल्कि लवलीन ने बलात्कार की शिकार महिलाओं से बातचीत के बाद ही इस फिल्म को बनाया है। ये पूरा 1 साल मुझे लगा टू गेट परमिशन कि मैं अंदर जा सकूं तिहाड़ जेल में, और एक औरत होने के नाते और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि उन्होंने सालों साल औरत तो देखी नहीं है, तो वो भी एक चैलेंज था अपने आप में। Can I request the audience to, take out their hands and give a loud round of applause for this wonderful. I think the film captures to all of us the many issues which have to be tackled at different levels. It's been brilliantly put together. The whole film and what has preceded as information has been very, very overpowering. बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की एक सत्य घटना पर बनी ये फिल्म बलात्कार के बाद व्यक्ति की मानसिक स्थिति, बलात्कारी की मानसिकता और इस पूरे कांड में समाज की भूमिका पर कई सवाल उठाती है। अपनी पूरी फिल्म में उन्होंने उन सभी परिस्थितियों को उजागर करने की कोशिश की है जिनसे पीड़िता को गुजरना पड़ता है। लवलीन ने उन स्थितियों पर भी बात की है जो एक व्यक्ति को यह अपराध करने को मजबूर कर देती हैं। इसमें एक आम रिक्शा वाले से लेकर मनोवैज्ञानिक, कानून विशेषज्ञ, किरण बेदी, गिरजा व्यास, रेणुका चौधरी और सुषमा स्वराज जैसी जानी मानी हस्तियों के विचार भी शामिल किए गए हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, और ये आपके लिए स्पेशल कि आप वक्त के सीने पे एक शम्मा जला जाए, जो सिमत से गुजरे, एक फूल खिला जाए जो आपके व्यक्तित्व को ऐसा है आपको देती हूँ। और इस तरह की फिल्म डायल के बाद रेप पर बनने वाली फिल्म ने बहुत बड़ा सहारा नए कानून बनाने में दिया है। कुछ सब्जेक्ट्स हम आपको और देंगे और आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इतनी बड़ी मतलब कामयाबी हमें प्राप्त हुई है आज कि एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ नोज व्हाट बॉलीवुड इज केपेबल ऑफ। और ये कोई आसान फिल्म नहीं थी, बिकॉज इसमें डॉक्यूमेंट्री की भी झलक है, वो इसमें दर्दनाक कहानी भी है जो रोज़ बम्बई के किसी न किसी गली में लोगों को सहनी पड़ती है। इसमें क्रूअल्टी भी है, पर सबसे जो मेरा ख्याल बड़ी कामयाबी इस फिल्म की है कि डिस्पाइट ऑल द ऑब्स्टिकल्स वी विन, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंडियन ट्रेट कि हम हर मुसीबत को झेल कर चोटी पे चढ़ ही जाते हैं। The technical aspect is also very important. Again, sound mixing part. We have Rasool Pukuti, again an Indian winning Oscar for that. Absolutely, absolutely. तो एडिटिंग जो इतनी शार्प हुई है आपकी, पैरेलल कटिंग इतनी शार्प हुई, कहीं बोर्डम का एक मोमेंट नहीं था। एंड देन दिस इमैक्युलेट प्लानिंग, द कास्टिंग, द रिस्क ऑफ टेकिंग न्यू फेसेस, और आप देख रहे हैं